Shall we just start? Shall we just start? Okay. Let's list out the prime numbers between 50 and 80 first. So the first prime number is 53. Wonderful. Next will be 57. 57, beta. 57 will be no. 57 59. number, right? 57 is a composite number. 59. 61. 61 will be our prime number. 67. 67. 67, right? Then 71. Right? 73. 79. Right, 79. How many prime numbers are there? 7 prime numbers. So what we have to do, we have to find out the mean between 50 and 80. So that is given by sum upon number, right? So that is 53 plus 59 plus 61 plus 67 plus 71 plus 73 plus 79 upon 7. So let's add up. What will you get? 463. Shall I trust you people? Yes. Okay. 463 upon 7. So that is 66.14. 66.14. अब मुझे बताएंगे, have we done this question? The following are the numbers of books issued in a school library during a week, right? 105, 216, 322, 167, 273, 405 and 346. You have to find out the average number of books issued per day. फटाफट से क्या करेंगे? Sum of observations upon number of observations. क्या रखा है आपने? 1000. Sorry. Ma'am, 1834 by 7. वीक दे रखा है, इट्स नॉट पर वीक. 1 सेकेंड पर यूर, 1 सेकेंड बेटा. आपको ड्यूरिंग अ वीक दे रखा है, तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 डेज का दे रखा है और आपको पर डे निकालना है, तो आप इसमें पर डे नहीं निकालेंगे. ड्यूरिंग अ वीक मतलब आपको 7 डेज का दे रखा है. पर यूर बोलिए बेटा आंसर. Ma'am, is it 262? Is it 262 for those who have done it at home? Yes. Yes. So what we have to do here, we have to sum up all the observations. So mean of average books. जिन बच्चों ने किया हुआ है, we are repeating the homework in the class. Those who have already done, they will repeat it for practice. ठीक है? We will repeat it for practice. हम खाली नहीं बैठेंगे, हम repeat करेंगे. Maths also requires consistency and repetition. 105 plus 216 plus 322 plus 167 plus 273 plus 405 plus 346 upon 7. What is the total? 1834. 1834. Yes, 1834 upon 7, which is 262. Right. रायन कैमरा ऑन करो, ये बच्चे अभी भी लेट ज्वाइन कर रहे हैं. The daily minimum temperature recorded in Fahrenheit at a place during 6 days of a week was under Monday, the temperature is 35.5. Tuesday, the temperature is 30.8. Wednesday, the temperature is 27.3. Thursday, the temperature is 32.1. Friday, 23.8. And Saturday, 25.9. Right? Now, what to we need to find out the mean temperature. आपको क्या find out करना है? Mean temperature find out करना है. ठीक है. सो मीन टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे? सम ऑफ ऑल टेम्परेचर्स अपॉन नंबर. फटाफट से करेंगे. जिन्होंने किया वो भी रिपीट करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगा बेटा. तो मीन टेम्परेचर इज गिवन बाय सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ठीक है.
that is equal to sum of observations upon number of observations, that is 35.5 plus 30.8 plus 27.3 plus 32.1 plus 23.8 plus 29.9. ठीक है? So that is equal to upon how many days? Yes, 6 days. 179.4 upon 6, which is equal to 29.9 degree Fahrenheit. degree Fahrenheit. Very good. Give a closure statement, everybody. The mean temperature is 29.9 degree Fahrenheit. Now, for this question, if the mean of 5 observation is 13, mean of 5 observation आपको क्या given है? 13 given है. You have to find out the value of x, hence find the mean of the last 3 observation. Do you remember? हमने ऐसा question किया था. इसमें पहले हम mean की help से किसकी value find out करेंगे? x की. x की value आ जाएगी तो हम क्या करेंगे? Last के 3 observations में हम x की value रखेंगे. We'll find out those values and then find out the mean. ठीक है? x की वैल्यू 9 है. x की वैल्यू 9 है. Yes. x की वैल्यू 9 है बेटा. हरियुल आप रिपीट कर रहे हैं क्योंकि मैं सभी को रिपीट करवा रही हूँ. Are you repeating? Good, you have done at home, but there are many students अभी in the class जिनके एग्जाम्स चल रहे हैं. So we are repeating for everybody. और आप लोगों का डबल प्रैक्टिस हो रहा है. So mean is 13, right? 1, 2, 3, 4, 5 observations. So that is x plus 2 plus x plus 4 plus x plus 6 plus x plus 8 upon 1, 2, 3, 4, 5 up equals to 13, which is 65. So x plus x, 2x, 3x, 4x, 5x. 2 plus 4, 6, 12 and 20 upon 5 equals to 30. अब एक चीज देखो, कुछ बच्चे जो कई बार कैलकुलेशन में स्ट्रगल करते हैं, सब नहीं करते बट कुछ करते हैं. ठीक है? उनके लिए जब भी आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन आती है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ व्हाट आई डिड इट डुप्लीकेसी, है ना? डुप्लीकेसी ऑफ अ नंबर. जब भी आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन आएगी बेटा, राइट, व्हाट विल यू डू? राइट, यू विल नॉट मल्टीप्लाई विद दिस. मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे आप दोनों नंबर्स में कॉमन फैक्टर क्या देख पा रहे हैं? जल्दी बताइए. 5. सो यस, तो आप 5 कॉमन ले लेंगे. क्या आ जाएगा? x प्लस 4, 13 टाइम्स 5. तो 5 से 5 कैंसिल. अब यहाँ पे 13 था, यहाँ पे कोई बिगर नंबर भी हो सकता था या कुछ भी हो सकता था. तो यू नीड टू बी लिटिल थॉटफुल व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस कि हमें करना कैसे है, हम अपनी कैलकुलेशंस को ईज में कैसे रखें. सो x प्लस इक्वल्स टू 13 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 9. सो लास्ट 3 ऑब्जर्वेशंस क्या हो जाएंगी? लास्ट 3 ऑब्जर्वेशंस क्या हो जाएंगी? 9 प्लस 13, 15, 17. Yes, 9 plus 17, 9 plus 8. लास्ट 3 ऑब्जर्वेशंस आ गई, राइट? अब लास्ट 3 ऑब्जर्वेशंस के लिए आप क्या कैलकुलेट करेंगे? मीन कैलकुलेट करेंगे. मीन ऑफ, लिख रहे हैं आप लोग? Mean of last 3 observations is equal to 13 plus 15 plus 17 upon 3, right? 45 upon, which is equal to 50. Got it? Everyone, are you doing the self-check work? Are you doing the self-check work? Pakka? Shall we proceed? पीछे नहीं आ गए, हम आगे चले गए. Are you saving your boards for your future references?
Who all have started creating folders? Tell me. And those who are not creating, will not be my fault. It will be your fault later on when you will struggle in finding out anyway. तो डे वन से अपना फोल्डर, अभी ज्यादा क्लासेस तो हुई नहीं है, 3-4 क्लासेस हुई हैं, तो अपना एक क्लास 10 का फोल्डर बनाओ और सब्जेक्ट वाइज उसमें फोल्डर क्रिएट करो स्पेसिफिकली फॉर माय 3 सब्जेक्ट्स व्हिच यू आर लर्निंग हियर और 2 सब्जेक्ट्स रिस्पेक्टिवली, राइट। और उसका मैथ, साइंस का और इंग्लिश का अपना फोल्डर बना के चलो और डेट वाइज उसमें आप अपनी क्लासेस सेव कर दो। आपने स्कैन किया होगा तो आपके पास एक पीडीएफ खुलती है, पीडीएफ खुलती है सभी बच्चों के पास, अगर आपने स्कैन किया है उसको, राइट। तो अगर आपने उसको स्कैन किया, आपका पीडीएफ खुलेगी, उस पीडीएफ को आप शेयर कर सकते हैं फर्दर। डू यू नो दिस और नॉट? डू यू नो दिस? आप उस पीडीएफ को सेव कर सकते हैं, उसको अपने सिस्टम में जाके रीनेम कर सकते हैं एंड यू विल ऑल्सो नॉट सीक आउट माई हेल्प लेटर। You have to manage your own things on your own. Okay. Now, children, the mean of 24 numbers is 35. If 3 is added to each number, अगर आप 3 हर नंबर में ऐड कर रहे हो, what will be the new mean? तो इसमें हम क्या करते हैं? How many times 3 was added? 24 times, है ना? तो आप क्या करोगे इसमें? पहले sum of 24 numbers निकालोगे। किया आप लोगों ने क्वेश्चन? Everybody, क्या करेंगे हम? Who will explain me? Online students, can you explain me? Online students, can you explain me? Who will explain? Ryan, will you? Will you explain, Ryan? He was not in class. Okay. The first question or Huh? the second one? Ma'am, the first question or the second one? First question. Ma'am, in the first question, first, जो given होता ma'am, है, we will write the mean and we will write the formula that mean is equal to sum of observations. Mean of 35 numbers, of mean of 24 numbers is the sum of observations divided by number of observations. yes or no? If mean of 24 numbers is 35, then sum of 24 numbers will be 35 into 24. ये बात किस किस को एकदम क्लियर है कि ये क्या किया है? पक्का जानवी सबको देख के हाथ खड़ा नहीं कर रही। Others, Aditi, Kanika. Yes, ma'am. Okay. So mean of 24 numbers is 35 and sum of 24 numbers is 35 times 24 which is 840. yes 840। ठीक है, आपके पास सम आ गया। इसका क्या मतलब है? यहीं पे इसका इंटरप्रिटेशन लिखो, x1 प्लस x2 प्लस अप टिल x24 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 840। हाईलाइट करो, मार्क दिस एज 1। क्या करेंगे आप? इसको 1 के जैसे मार्क करेंगे। अब जब आपके पास सम ऑफ क्या आ गया? 24 नंबर्स 840 आ गया। What is the condition which is provided to us in a question? 3 is added to, right? So ATQ, according to question, 3 was added to each number. हर नंबर में हम क्या ऐड कर रहे हैं बेटा? 3 ऐड कर रहे हैं up till yes 24 तक हम क्या ऐड करेंगे? 3 ऐड करते चले जाएंगे। तो अब क्या हो जाएगा आपके पास? 3 कॉमन नहीं आएगा। 3 was added how many times? 24 times. So we will split it. हम क्या करेंगे? स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, तो हम स्प्लिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 अप टिल x24। ठीक है, प्लस क्या चलेगा? 3 को ऐड किया गया 24 टाइम्स, तो 3 को 24 टाइम्स ऐड कर रहे हो तो क्या लिखोगे? जल्दी बताओगे। यस, 3 टाइम्स 24, राइट। सो व्हाट इज द वैल्यू? 840. Yes, what is the value? 840 plus 72, which is equal to 2 and 1 and 9, 912। तो आपके पास न्यू सम क्या आ गया? 912 आ गया।
तो न्यू मीन कैसे निकालेंगे? Sum of observations upon number of observations, which is equal to 38. Got it? Similarly, 6 is subtracted. Next करेंगे पहले. Nanya, please focus. अद्वैत समझ में आ रहा है बेटा हमें? हाँ, नहीं आ रहा? क्या कर रहे हैं हम? मीन से पहले सम निकाल रहे हैं, फिर हम वो कंडीशन देख रहे हैं, उसको सेपरेट आउट कर रहे हैं. 3 को ऐड किया गया 24 टाइम्स. तो मीन इज 37. Everybody. Sure? Yes, ma'am. Online students, what is the answer? Mean of 20 numbers is equal to 43. Sum of 20 numbers is equal to 20 times 43, which is equal to 068. ठीक है? According to question, क्या किया हमने? अनुष्का क्या कर रहे हैं हम? Ma'am, 37. हाँ जी बेटा. If 6 is subtracted from each number, हर नंबर में से हम क्या subtract कर रहे हैं? 6 subtract कर रहे हैं. तो आपके पास sum of 20 numbers आ गया, मतलब x1 plus x2 up till x20 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 860. ये वैल्यू आ गई आपके पास. ठीक है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप हर नंबर में से क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो? बार बार 6 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो. x2 minus 6 up till x20 minus 6. Yes? यही कर रहे हैं हम, राइट? अब आप देखेंगे x1, अब क्या करेंगे हम? नेक्स्ट सेपरेट कर देंगे. x2 up till x20 और 6 को कितनी बार सब्ट्रैक्ट किया? 20 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया. व्हाट इज द सम? यूज इक्वेशन 1. 860, वेरी गुड. Minus 860 minus 120 740. ठीक है? What is it? नहीं, पहले ही हम क्या लिखेंगे? न्यू सम. अब हमें क्या निकालना है? न्यू मीन निकालना है. Yes, 740 upon 37. आप लोग रिपीट कर रहे हैं? Everyone. Shall I send बबीता दीदी for round? बबीता आ जाओ बेटा. ये बेध्यान मत किया कर, फोन ब्लॉक हो जाएगा. एट अ टाइम एक काम करो. एट अ टाइम एक काम करो. 6-7 मिनट का कोई रेलेवेंस नहीं होता ना. नेक्स्ट आ जाओ. मीन ऑफ 15 नंबर्स इज 27. इफ अब ये वाला देखो, हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला लास्ट क्लास में भी किया था. मैंने आपको बताया था 4 सिचुएशंस आएंगे: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. अब हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन रिपीट कर लिया. अब हम कौन सा करेंगे? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. अब मल्टीप्लिकेशन में एवरीवन पेन डाउन. Everyone pen down and listen to me carefully. The mean of 15 numbers is 27. Steps are same. विधान का ध्यान इधर उधर कहीं भी जाता है. Mean of 15 numbers is 27. The sum of 15 numbers will be 27 into 15, which is equal to 405.
ठीक है, अब आपके पास क्या आ गया, सम ऑफ 15 नंबर्स आ गया, हर नंबर में क्या मल्टीप्लाई किया गया है, 4। तो दैट मीन्स आपके पास क्या आया, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टिल x15 का सम क्या आया हमारे पास, 405। इस इक्वेशन को हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ, सब नंबर्स के साथ हर नंबर में 4 मल्टीप्लाई कर दिया गया। सो x1 में 4 मल्टीप्लाई किया गया, x2 में 4 मल्टीप्लाई किया गया, राइट, x3 में 4 मल्टीप्लाई किया गया, और कहां तक किया गया, x15 इंटू 4। गॉट इट, ये किया गया। अब आप इस सिचुएशन को देखो कि 4 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स, राइट, 4 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स। तो हम सब नंबर्स में से क्या करें, 4 को कॉमन ले लें, ये ऐसा ही सिचुएशन हो गया, राइट। तो अंदर क्या बचा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टिल x15, ठीक है। अब इसका सम क्या है, यूजिंग इक्वेशन 1, 405 which is equal to what, which is equal to what, 4 times 5 will be, huh? Yes, this is 20, yes, 1620, got it, 1620। आपके पास सम आ गया, ये क्या आ गया आपके पास, न्यू सम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ में, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। तो हमारे पास न्यू सम क्या आ गया, 1620। तो न्यू मीन कैसे निकालेंगे, न्यू मीन कैसे निकालेंगे, न्यू सम अपॉन 15 विच इज इक्वल टू 108। यस, अब डिवीजन में भी क्या करेंगे, 1 अपॉन दैट नंबर कॉमन ले लेंगे। करो पहले, फिर डिवीजन वाला करेंगे। थोड़ा सा बेटा दिमाग एक्सप्लोर किया करो, अपने दिमाग से काम किया करो। एक क्वेश्चन टीचर करवा रहा है तो एक क्वेश्चन खुद से भी दिमाग लगाने की कोशिश किया करो। अगर ब्रेन फंक्शनल नहीं होगा तब तक काम नहीं चलेगा। डिवीजन वाला तो हम क्यों रुक रहे हैं, जल्दी जल्दी करो, हाथ नहीं रुकना चाहिए। We have done this. We have done this, and now we have to do this quickly. ये 3 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, जल्दी जल्दी करो। अगला करो, अगला, हाथ नहीं रुकना चाहिए, अगला करते चलो, मुझे बोलने की भी जरूरत ना पड़े। हाँ जी बेटा, मैम इसका 1.5 है। इज इट 1.5 फॉर द नेक्स्ट वन, 5 है पर यूल, हियर एवरीवन इज सेइंग वी विल सॉल्व इट टुगेदर। So 12 numbers is equal to
40. So sum of 12 numbers is equal to 40 times 12, which is 480. So which means x1 plus x2 up till x12 is equal to 480. This is equation 1, right? 80 क्यों क्या है? हर नंबर को किससे डिवाइड किया गया? 8 से. तो x1 by 8 plus x2 by 8 up till x12 by 8. ठीक है, क्या करेंगे इसमें दीक्षा, आप बताइए. वेरी गुड. अगर हम 1/8 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा अंदर? x1 plus x2 up till x12. तो कौन सी इक्वेशन यूज करें? फर्स्ट इक्वेशन यूज करें. 1/8 into 480 which is equal to 60. तो ये क्या है आपका? न्यू सम. ठीक है, अब न्यू मीन कैसे निकालेंगे? पयुल, आर यू सेटिंग इट? Yes, ma'am. 12 which is equal to 5. Done. Got it? Move to next quickly. Mean of 20 numbers is 18. अब 3 को ऐड किया है 2. अब देखो कैसे है ये. If 3 is added to first 10 numbers, find the mean of new set of 20 numbers. तो सिचुएशन चेंज कर दिया हल्की सी. क्या है? स्टार्ट करो. यस, पहले 10 नंबर में ऐड हो. एवरीवन पेन डाउन. कुछ न्यू सिखा रही होती हो, कुछ कर रही होती हो, 1 मिनट में रुक के सब छोड़ के पहले समझा करो. श्रेयांश को पीछे कर दो, शौर्य को आगे कर दो. सुनाई नहीं दिया दीदी को? आओ शौर्य, जल्दी बैठो. चलो, तो हमारे पास मीन ऑफ 20 नंबर्स क्या है बेटा? 18. अद्वैत करवाएगा मुझे ये वाला क्वेश्चन. मीन ऑफ 20 नंबर्स इज 18. तो सम ऑफ 20 नंबर्स क्या हो जाएगा अद्वैत? हाँ, 18 multiplied by 20 which is equal to 360. ठीक है, क्या what is according to question? x1 plus x2 up till x20 हमारा क्या आ गया? 360. जो जो काम हम कर सकते हैं उसको तो करके साइड में रखें, राइट? अब देखिए क्या है हमारे पास. if 3 is added to first 10 numbers. 3 को आपने फर्स्ट नंबर्स कितने टोटल? 20. और 3 कितने नंबर्स में ऐड किया गया? 10. तो ये सिचुएशन कैसी बनी होगी? x1 into x1 plus, राइट? x1 plus 3, x1 plus 3 plus x2 plus 3 है ना? Yes. up till x10 plus 3. ऐसे करेंगे. आगे गया प्लस x11 प्लस अप टिल x20. ऐसा कुछ हो गया? ऐसा कुछ हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. पहले 10 नंबर में क्या ऐड हो गया? 3. बाकी के 10 नंबर में कुछ भी ऐड नहीं हुआ. तो 3 कितनी टाइम्स ऐड हुआ? 10 टाइम्स ऐड हुआ. तो इसमें से 3 बाहर करो. x कॉमन नहीं लेना. हाँ, एडिशन है. x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टिल x10. इसको करेंगे अलग. और 3 कितने टाइम्स ऐड हुआ? 10 टाइम्स. प्लस x11 प्लस x12 अप टिल x20. यस और नो? एवरीबॉडी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या ये बात क्लियर है? आर यू क्लियर विद दीस 2 स्टेप्स? क्विकली टेल मी. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे? दिस प्रोडक्ट विल बिकम 30. ये 30 हो जाएगा. और इसको क्या कर देंगे? मर्ज कर देंगे. मर्ज कर देंगे तो क्या आ जाएगा? x1 प्लस x2 अप टिल x10 प्लस अप टिल x20. सब मर्ज हो गया. और बाहर क्या रह गया? 30. ठीक है, अब इनका सम क्या था हमारे ऊपर पास? 360. तो 360 प्लस 30 विल गिव यू 390. ठीक है,
तो ये क्या आ गया आपके पास, न्यू सम आ गया आपके पास, विच इज 390. गॉट इट और नॉट? अब न्यू सम से क्या निकालोगे, न्यू मीन निकाल लो. 390 अपॉन 20. 10 से क्यों होगा बेटा, न्यू मीन में नंबर्स तो 20 है ना. क्या लिखा है इसमें, फाइंड द मीन ऑफ न्यू सेट ऑफ 20 नंबर्स. ठीक है, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 एंड देन यू हैव 19.5. अब देखो, इट इज अप टू, लिसन टू मी 10th क्लास, लिसन टू मी. अच्छा लग रहा है 10th क्लास सुन के? ओके, नर्वसनेस भी हो रही है? नहीं, नर्वसनेस की कोई बात नहीं है. डे 1 से अगर एक चीज फॉलो करते जाओगे कि जो आपको क्लास में करवाया जा रहा है वो रिपीट करो. ठीक है, और जब वीकेंड्स आए उस टाइम पर आप कुछ एक्स्ट्रा सर्च आउट करके उसको सिमिलर ग्राउंड पर प्रैक्टिस करो, तो आपको कोई भी पीछे नहीं कर. आर यू गेटिंग दिस? इसी चीज, इसी तरीके से जैसे क्वेश्चन से आपको टीचर दे रहा है और आप क्वेश्चन में स्ट्रगल कर जाते हो एग्जाम में, वो स्ट्रगल क्यों आता है, वो स्ट्रगल सिर्फ तभी आता है जब हम घर पे जाके उसको रिपीट प्रैक्टिस नहीं करते. इस टाइम पे जो मेजॉरिटी प्रॉब्लम और रिसर्च बच्चों में नोटिस की जा रही है, वो प्रॉब्लम यही है कि बच्चे अपना खुद का दिमाग यूज नहीं कर रहे, बच्चे बुक्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे. तो आपके पास ये इनफ अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग, आप ब्रिजिंग कर रहे हो. योर्स इज द फर्स्ट बैच जिसको विंडो मिल रही है ब्रिजिंग करने की. इससे पहले वाले किसी बैच के साथ ब्रिजिंग नहीं की गई. नीड को देखते देखते चीजें चेंज हो रही हैं और आप इसका फायदा नहीं उठाओगे तो कोई फायदा नहीं. हम दिया के साथ इधर उधर घूम सकते हैं, होमवर्क नहीं कर सकते, एक ही थाली के चट्टे बट्टे. मैम, बच्चे, मैम मुझे मल्टीप्लिकेशन समझ में नहीं आ रहा. मल्टीप्लीकेशन समझ में नहीं आ रहा? बताओ मल्टीप्लीकेशन में क्या समझ नहीं आया? मैम मेरा आंसर 108 आया था उसमें. हमने मल्टीप्लिकेशन वाला कहाँ किया था, रुक जाओ. ये बताओ. मैम वो लेफ्ट में. तेरा भी तो. सबसे नीचे ये वाला. हाँ. मैम उसका सेकेंड लास्ट नहीं आया. ये 108 ही आ रहा है, देखो क्वेश्चन दिख मैम रहा है. 80 क्यू से. अच्छा देखो, दोबारा से समझो मल्टीप्लिकेशन वाला. आपके पास कुछ नंबर्स है, फॉरगेट अबाउट दिस थिंग. ठीक है, जिसको मल्टीप्लिकेशन में अभी भी प्रॉब्लम हो रही है, लिसन टू मी केयरफुली. आपके पास कुछ नंबर्स थे, क्या नाम है इसका, हार्दिक. हार्दिक, आपके पास कुछ नंबर है, से सपोज 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 10 है, कुछ नंबर्स हैं. इन नंबर्स का मीन निकालने को बोला गया, निकाल लोगे आराम से. फिर इसमें सिचुएशन चेंज कर दी कि हर नंबर के साथ हमने क्या मल्टीप्लाई कर दिया, 4 मल्टीप्लाई कर दिया. इसी क्वेश्चन से पिक कर, हर नंबर के साथ हमने क्या मल्टीप्लाई कर दिया, 4. तो ये नंबर्स क्या बन जाएंगे, 2 टाइम्स 4, 3 टाइम्स 4, 5 टाइम्स 4, 7 टाइम्स 4 एंड 10 टाइम्स 4. प्लस भी करेंगे, पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी. ठीक है, अब ये नंबर्स क्या बन गए, मल्टीप्लाई करो. 8, 12, 20, 28 एंड 40. इफ यू लुक एट दीज नंबर्स, या तो आप इन्हें सीधा ऐड कर दो और डिवाइड कर दो बाय 5, तो आपके पास न्यू मीन आ जाएगा. ठीक है, बट आप एक काम भी कर सकते हैं, जब आपके सभी नंबर्स में क्या हो, कोई सेम नंबर कॉमन हो, तो इन सभी नंबर्स में कौन सा नंबर कॉमन है, 4. तो आपने उस कॉमन नंबर को निकाल दिया और सब नंबर्स को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया. 8 रिड्यूस होके क्या हो जाएगा, 2, 3, 5, 7 एंड 10. तो ये 4 क्या हो गया, कॉमन ले लिया.
हाँ, तो जो आप इन सबका सम आएगा उससे आप क्या कर देंगे, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऐसा कब करते हैं, टू रिड्यूस द डुप्लीकेसी ऑफ एफर्ट्स। डुप्लीकेसी ऑफ एफर्ट्स मतलब यहाँ आपने हर नंबर में 4 मल्टीप्लाई किया, फिर वो हर नंबर ऐड करते चले जा रहे हो, तो आप डबल डबल काम कर रहे हो, राइट। यहाँ पे हमने कॉमन लेके क्या कर दिया, उन एफर्ट्स को रिड्यूस कर दिया। आर यू गेटिंग? अब इसी तरीके से परियोल हमने हर नंबर में क्या मल्टीप्लाई किया था बेटा, हमने हर नंबर में 4 मल्टीप्लाई किया था। कैन यू सी हियर द नंबर 4, यस मैम। है ना। तो हर नंबर के पास कॉमन नंबर क्या आ गया, कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 4। तो वो कॉमन फैक्टर को हमेशा हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, और हमारे पास अंदर नंबर्स रह जाते हैं। तो ये सम ऑफ नंबर्स इक्वेशन 1 में गिवन है विच इज 405। तो हमने 4 into 405 किया विच इज 1620, एंड न्यू मीन निकालने के लिए हम न्यू सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करेंगे। इज इट क्लियर नाउ? यस मैम। पक्का? यस मैम। और डिवीजन वाला मैम आ गया। आ गया। अब हम किस क्वेश्चन पर हैं? यस, मीन ऑफ 6 नंबर्स इज 26 इफ वन ऑफ द नंबर्स। ये वाले क्वेश्चन आप घर से ट्राई करेंगे पहले। मैं अब आपके नहीं, अभी टाइम है, हम कर सकते हैं, 4:10 ओनली। ठीक है, चलो करो, मेरे साथ ही करो। द मीन ऑफ 6 नंबर्स इज, व्हाट इज द मीन ऑफ 6 नंबर्स? 23. Mean of 6 numbers is 23. If one of the numbers is excluded, the mean of remaining numbers will be 20. You have to find out the excluded number. क्या करेंगे? कितने numbers का mean 23 है? 6 numbers. हाँ, 6 yes. आप पहले sum of 6 numbers निकालोगे, एक नंबर चला गया, कितने numbers रह गए? 5 numbers रह गए। तो सम ऑफ 5 नंबर्स निकालोगे, सम ऑफ 6 में से सम ऑफ 5 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एक्सक्लूडेड नंबर। चलो ये पहले हाइट वाला करा था। हाँ, चलो करो, दोबारा से करो मेरे साथ साथ। मीन ऑफ 6 नंबर्स इज 23. So sum of 6 numbers will be 23 times 6, which is 138, right? One number is excluded. So mean of 5 numbers is equal to what? 20. So sum of 5 numbers is equal to 20 times 5, which is 100. ये remaining Yes. Excluded number कैसे आएगा? Excluded number will be S6 minus S5. Greater sum में से smaller sum को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, which is 38. Clear? Everyone? Next पर चलो. Average height of the boys, 30 boys was calculated to be 150. मतलब 30 बॉयज की एवरेज हाइट कितनी आई है, 150. ठीक है, तो सम ऑफ हाइट ऑफ 30 बॉयज कितना आ जाएगा, 4500 आएगा. It was detected later that one value of 165 centimeter was wrongly copied as 135 centimeter. तो राइट वैल्यू क्या है, 165. रॉन्ग वैल्यू क्या है, 135. अब आपको क्या निकालना है, करेक्ट मीन. तो ये सम कैसा है, करेक्ट है, इनकरेक्ट है? तो इसके ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, इनकरेक्ट सम है ये, राइट. अब इनकरेक्ट सम के लिए क्या करेंगे आप, पहले करेक्ट सम निकालेंगे. करेक्ट सम कैसे निकलेगा, इक्वल्स टू इनकरेक्ट सम माइनस wrong value plus right. yes plus right value. So incorrect sum क्या है बेटा आपका, 4500. wrong value क्या है आपकी, 135. और right value क्या है आपकी, 165. So 4500 minus 135 plus 60 will be 165 will be plus 30. So which is equal to 4530. 4530. Is it clear? Everyone? Sorry कर लिया. Okay.
So this is 4530. What you need to do? You have to find out the correct mean. इसमें new mean वाला situation नहीं है. इसमें कौन सा situation है? Correct mean. So we have to find out the correct mean, which is given by. Correct mean कैसे निकालेंगे? Correct sum upon number of observations. तो correct sum क्या है बेटा? 4530 upon. How many observations are there? 30. Yes, which is 1. तो आप लिखेंगे correct mean of 30 boys. Mean height of 30 boys will be 151 सेंटीमीटर. एक वैल्यू रॉन्ग कॉपी करने से वैल्यू फ्लक्चुएट हो गई. 151 से क्या हो गई? 150 सेंटीमीटर. नहीं, मीन की बात कर रही है. एक वैल्यू गलत कॉपी करने से मीन फ्लक्चुएट कर गया. 151 होना चाहिए था, कितना हो गया? 150 हो गया. ये बात क्लियर हो रही है सबको? एवरीवन नेक्स्ट आ जाओ. मीन वेट ऑफ 34 स्टूडेंट्स क्या है? 46.5. ठीक है. इफ द वेट ऑफ टीचर इज इंक्लूडेड, मीन वेट राइज हो जाएगा कितने से? 500 ग्राम. मतलब 46.5 का क्या हो जाएगा? 47 हो जाएगा. 500 ग्राम्स किसके इक्वल होता है? 0.5 kg. राइट एवरीबॉडी? यस एवरीवन ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. ठीक है बेटा. फाइंड द वेट ऑफ द टीचर. तो वेट ऑफ द टीचर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सम निकालना पड़ेगा. पहले सम फॉर ऑल स्टूडेंट्स. फिर सम ऑफ 30. यस, फिर सम ऑफ स्टूडेंट्स प्लस टीचर. तो आपको मीन वेट ऑफ 34 स्टूडेंट्स क्या गिवन है? 46.5. जल्दी से प्रोडक्ट देंगे. सम ऑफ 34 स्टूडेंट्स विल बी 46.5 into 34. Give me answer quickly. Check करो. 1581. सम ऑफ 34 स्टूडेंट्स आ गया आपके पास. ठीक है. अब टीचर का वेट, जब टीचर इंक्लूड हुआ तो मीन किससे राइज कर गया? 500 ग्राम. तो आपका क्या हो गया? न्यू मीन क्या हो गया? 46.5 plus 0.5. Yes, 46.5 plus 0.5, which is equal to 47 kg. Right? तो न्यू सम कैसे आएगा बेटा? न्यू सम जिसमें स्टूडेंट्स और टीचर दोनों इंक्लूडेड है, विच इज 47 in 47. 35. Give me the product. 1645. Very good. Very good. 1645. आपके पास न्यू सम आ गया एवरीवन. ठीक है. अब हमारे पास जब न्यू सम आ गया है तो आप क्या करेंगे? यस, उसको इससे माइनस कर देंगे. यस. वेट ऑफ टीचर कैसे निकालेंगे आप? 1645 minus 1581, which is equal 64 to, kgs. yes, 62 kgs. Is it 62 kgs? No. 64 kgs. नहीं बेटा, क्या करोगे? Yes, this is 4 and 14 minus 64 kgs. 14 times 8, 14 minus 8 will be 6, 64 kgs. माफ कर सकते करो शुरू. बैठ पूरा हाथ थक जाता है हमारा. फिर Excuse me, ma'am. somebody was saying something. Yes, ma'am. मैंने आपको Okay. बताया था. हाँ बच्चे ठीक है. गो.
Ma'am, can you please solve the fifth one? This one, na? Fifth. ऊपर. Fine then. बेटा this is the last question of the sheet. उसके ऊपर वाले हम सारे solve कर चुके हैं. Which one is left? Which question are you asking, Parul? Ma'am, the one with the mean of 20 numbers is 18. कर लिया बेटा. Mean of 20 numbers करा तो है. कहाँ थे आप? मैम मेरी क्लास बार बार लीव हो रही थी. अच्छा, I will share the board. अभी रुक जाओ, लास्ट वाला कर लेते हैं बेटा, ठीक है? हम्म. So I have to look for that question. सॉल्व किया हुआ है मैंने इस बोर्ड पर. The mean weight of 36 students is 41 kg. If one of the student leaves the class, the mean decreased by 200 grams. So now the observation reduces by 1. Find the weight of the student who left the class. The mean weight of how many students? 36 students is equal to 41. So sum of 36 students कितना आएगा? 1476. 1476. One student left, right? Reduced mean कितना आएगा? Reduced mean is equal to 41 minus 200 grams है, which is equal to 0.2 kg. तो ये क्या आ जाएगा? 40.8. Yes, which is equal to 40.8 kgs. ये आपका reduced mean है. Reduced mean से आप reduced sum निकाल लेंगे. 1428. That is equal to 40.8 into 35. 1428. Hmm. 1428. नहीं बेटा, sir, I am asking the product. 1428. ये आपका reduced sum है, right? तो what will you do? You will subtract, yes, weight of student who left. Weight of student who left. Yes. 1476 minus 14248. 48 kgs. So what is the weight of the student who left the class? 48 kgs. Do we have the clarity? 16 minus 8 will be 8, na? 48 ही आएगा. Do we have the clarity now? This we have already done. Median. पहले बेटा होमवर्क डिस्कस कर लेना. मीडियन में 5 मिनट ही लगेंगे. मीडियन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. होमवर्क किया था हमने. ये सारे क्वेश्चन सुन गए थे ना हमारे. हाँ, ये थे आप लोगों ने क्वेश्चंस. कॉलम बनाए हैं सभी बच्चों ने. सबने बनाए हैं. I am lacking space on board, right? I have to jumble here and there, so I am doing within the question. ठीक है? Everyone, have you drawn the columns or no? Yes. Find the mean of the frequency distribution. तो आपके पास xi fi है, तो आप थर्ड कॉलम किसका बनाएंगे? xi fi का बनाएंगे, right? So this becomes 70, this becomes 240, this becomes 500, this becomes, I think that is 1050. This becomes 890. सिग्मा एफ क्या है आपका? सिग्मा एफ निकालेंगे. 50. सिग्मा एफ क्या आ जाएगा? Is it 50, 20, 35 and yes, 50,
and this will be 2750. Sigma FI. yes sigma fi xi is equal to 2750. वो करने रखे क्वेश्चंस क्यों नहीं किए? टाइम नहीं था? यू वर सेइंग कि मैंने टेबल वाले किए हैं बैठ के. आपके पास तो कोई एक्सक्यूज नहीं है ना करने का. है कोई एक्सक्यूज? क्लास में आप बिना होमवर्क के बैठे हुए हो. मीन क्या आएगा आपका? 2750 upon 50 which is equal to 55. Are you able to manage like this? Everybody, online students. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So next you have to do the daily wages of 40 workers. तो ये तो हमें पता है कि सिग्मा fi हमें क्या दे रखा है? 40 गिवन है, राइट? और आपके पास क्या आ जाता है? xi fi. ठीक है? So 25 times 8 will be 225. 200. Right. 200 and 0 makes it 2000. This will make it 3300. This will be 2100. 4000. ठीक है? 4k नहीं लिख सकते है ना? Yes. तो आप सिग्मा xi fi which is equal to 2000, 4000, 6000, 6000, 2000, 8000, 8000, 3000, 11,400. 11,400. तो मीन क्या आ जाएगा आपका? सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi which is equal to अच्छा एक लास्ट रह गया. ओके 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 I missed it. 50 add होगा. हाँ. So we will multiply this. This will become 0, 25, 22, 50. हम कहाँ थे? 11,400 पे पहुंचे थे, right? 11,000, 13,650, right? 13,650. Sigma fi xi will be 13,650. करेंगे सभी बच्चे. मैं रोक रही हूँ अपना हाथ. Do it yourself. Do it yourself. 14, 4 times 3 will be 12, 16. 4 times 4 will be 16, and then you have 341.2. yes 341.2. 341. नहीं, हाँ, right 341.25. You are supposed to make a vertical column. You will not do like this. खाली में भी बैठ के अगर हम होमवर्क नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है. मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले नहीं हुए स्टार्टिंग. अच्छा ठीक है, ये वाले हो चुके हैं. रिपीट कर लो, रिपीट करो. चलो खाली नहीं बैठना, रिपीट करो. जितनी बार हम रिपीट करते हैं ना हमें क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी फिगर आउट हो चुके होते हैं. Ma'am, you are muted. अच्छा थैंक यू बेटा. Look, what is the mean in this question, children? What is the mean? 20.02, right? Mean sorry 20.2. तो आपके पास क्या वैल्यूज है? आपके पास सारी ऑब्जर्वेशन है, बट आपके पास क्या मिस्ड आउट है? फ्रीक्वेंसी मिस्ड आउट है. क्या मिस्ड आउट है आपके पास? फ्रीक्वेंसी मिस्ड आउट है. तो आप क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा? fi
XI. क्या फाइंड आउट करेंगे? FI XI. तो क्या हो जाएगा आपके पास 60. This will be 40 and this will be 120. क्या हो गया मुझे? Okay, this will be 20p, this will be 250, this will be 180. ठीक है. अब हमें सिग्मा F फाइंड आउट करना है. सिग्मा F क्या होगा? सिर्फ P वाली वैल्यू अलग से लिखेंगे. क्या आ जाएगी? प्लस P. 6 plus 8 14, 14 plus 10 24, 24 plus 6 will be 30. ठीक है. FI XI को सम करेंगे आप. ये आपके पास कौन सी वैल्यू है? सिग्मा FI, राइट. FI XI का समेशन करेंगे. दिस बिकम्स 180. 180 plus 180 will be 360. 360 plus 250 will be 560 plus 710. नहीं बेटा, 710. क्या आया हमारा? 180. 180 plus 180 360. 360 300 200 500 360 560 610. Right. 610 plus 20p. ठीक है. 610 plus 20p. ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चा? सिग्मा FI XI. ठीक है. सिग्मा FI XI की वैल्यू आ गई आपके पास. मीन क्या आ जाएगा? सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI. ठीक है. सिग्मा FI XI क्या है आपका? 610 प्लस 20p. और ये क्या है हमारा? 30 प्लस p. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 20.2? यस, 20.2 equals to 610 plus 20p upon 30 plus p. ठीक है. So this will be 20.2 30 plus p 610 plus 20p. करो सॉल्व फटाफट से. Ma'am, P is equal to 20. हाँ सही है. देख के नहीं करना. नहीं, अपने आप कर. वैल्यू लिख ली. आप इसी के साथ वही कैलकुलेशन कर लो. आ रहे वही कैलकुलेशन कर लो. Are you getting P का वैल्यू is 20? Yes, ma'am. 30. फोर डिवाइडेड बाई 0.2. 0.2 का डेसिमल एडजस्ट होकर 40 हो जाएगा. तो दैट विल बी 20. नेक्स्ट वाला करें. आपको मीन क्या गिवन है? व्हाट इज द मीन सानवी? 8. मीन हमें क्या गिवन है? 8. Right. What you need to find out the value of P. What is missing? Observation is missing or frequency is missing? Frequency is missing. तो आप क्या करेंगे? सिग्मा F निकाल लो यहाँ से पहले. 6 plus 8 14. 14 plus 15 29. 29 plus 12 सीधा करो. 29 plus 12 9. Yes. नहीं. 29 plus 12 39. 39 plus 2 41. 41 प्लस t. ठीक है. अब आप क्या निकालेंगे? x इंटू एफ निकालेंगे. ठीक है. जहाँ XI FI होता है तो XI FI लिखना है. अगर x और f लिखा है तो क्या लिखना है? x इंटू एफ. प्रोडक्ट ऑफ 2 करना है हमें. तो 3 times 6 will give you 18. This will give you 40. This will give you 105. 9p 88. And this will be 42. 52. Right.
So ये आपका हो गया. What do you need to calculate? Sigma XF. करो चलो इसके आगे करो, फिर मैं कर रही हूँ. प्लस 90. 203. सही क्यों नहीं कर रहे हो? 18 plus 52 will be 70, है ना? 18 plus regrouping कर लो. 18 plus 52 will be 70. 70 40 110 110 210 and 15 215 215 को भी अभी 5 को भी छोड़ दो. 210 हो गया. 210 plus 80 290 290 plus 13 303 plus 90. मैम बड़ी बड़ी वैल्यूज आएंगी. यस बेटा, मैम P25 है. चेक कर रहे हैं बच्चे, चेक कर रहे हैं. इसमें आपका मीन है सिग्मा एक्स एफ अपॉन सिग्मा एफ, राइट. मीन की वैल्यू क्या है हमारी? 8. सिग्मा एक्स एफ है 303 प्लस 90 अपॉन 41 प्लस पी. 248 प्लस नहीं 348, सॉरी 41 होगा ना बेटा. 41 into 4 328 plus 8p equals to 303 plus 9p. So 328 तो 25 आ गया और 90 minus 8p will be p. p का value is 25. Next करो. परियोल अदिति कर रहे हो बेटा? यस मैम. Yes, ma'am. लास्ट वाला क्वेश्चन कौन कौन कर रहा है? करो, आई एम वेटिंग. करो 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 अभिमन्यु. मैम मैं ये पूछूं कि P की वैल्यू फ्रैक्शन में आ सकती है? हाँ आ सकती है, ऐसा कुछ नहीं है. डेसिमल में गलती करते हुए 10 आएगी अभिमन्यु. डेसिमल में तो गलती नहीं हो रही. हम चेक कर रहा हूँ. क्या आ रही है वैल्यू? 10 आ रही है. एवरीवन, do I need to go for this question on board or have we done it at our end? Huh? We have done? Everyone has done? चलो मैच करवाओ एक बार फॉर रेफरेंस, क्योंकि आपको बोर्ड यूज करना है बाद में. This is 120. We are finding out XF. ठीक है? This will be 140. This will be 25. Wonderful. This will be 420. 420. 525. 140. 240. ओके, यहाँ पे निकाल लेते हैं सिग्मा एफ. जल्दी बताएंगे. 50 plus P. 50 plus P. सिग्मा 1445 plus 25 P. 1445 plus 25.
So we have mean which is sigma xf upon sigma f, right? Yes. So this is 28.25 which equals to 1445 plus 25. Sigma f क्या है आपका? 1 plus 25p. Yes, 25p, 50 plus p. Right? You will cross multiply. What will you get? 1.4. Direct लिख दूं? दोबारा बोलो. 1.5 plus 28.2. Plus 28.25p equals to 1445 plus 25p. ठीक है? 28.25p minus 25p, 1445 minus 1412.5. क्या आ जाएगा? 3.25p equals to 32.5. P is 32.5. So sorry. 32.5 upon 3.25, which is 100 upon 10. Right? 325 से 325 cancel. तो P का वैल्यू क्या आ गया आपका? 10. Clear? Everyone? Now we have a case of two missing frequencies. तो two variables है तो आपके पास दो चीजें होंगी. क्या होंगी? मीन भी होगा और सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज भी होंगे. ठीक है? So we have x and f. This is 40 xf. This will be 20 f1. This will be 240. 40 f2. Yes, 150. 240. So this is equal to 4 plus 8, 12, 12 plus 3, 15, 15, 19. So 35 is equal to 19 plus f1 plus f2. ये रहेगा. एक इक्वेशन क्या आ गई आपके पास? f1 plus f2 is equal to 35 minus 19. हम समझ रहे हैं सब? Are you doing it together? तो f1 प्लस f2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 16. राइट? f1 प्लस f2 इज 16. अब आपके पास xf है तो आप सिग्मा xf निकालेंगे बेटा. क्या आ जाएगा? 40 प्लस 240 विल बी 280. 240 480. 480 प्लस 40 520. 520 प्लस 150 670. तो सिग्मा xf क्या आ गया आपके पास? 670 plus 20 f1 plus 40 f2. ये आ गया आपके पास. यस. अब आपके पास मीन क्या गिवन है ऊपर? 34. तो मीन का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा xf अपॉन सिग्मा f. मीन क्या है हमारे पास? 34. ये क्या है हमारे पास? 670 प्लस 20 f1 प्लस 40 f2 अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू क्या है? 35. तो दिस विल बी, कैन यू रिड्यूस इट? कैन यू रिड्यूस इट बाय टेकिंग टू कॉमन? कैन यू रिड्यूस इट? क्या हम अपनी कैलकुलेशन सिंप्लीफाई कर सकते हैं? आपके पास न्यूमरेटर में बट 534 को कैंसिल नहीं करेगा ना. हाँ, अच्छा ऐसे कर ले, ऐसे भी कर ले. 34 गुड आइडिया. अगर हम यहाँ से 5 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा? 1 राइट, 3 एंड 2, 132. ठीक है. प्लस 4f1 प्लस 8f2 अपॉन 35. तो ये 35 को रिड्यूस करके क्या कर देगा? 7. अब देखो इसमें फर्दर रिडक्शन की जा सकती है. कैसे? अब इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हो? 2 और कॉमन ले सकते हो. यहाँ पे रहा 34. एवरीवन जब कुछ समझा रही होती हूँ, कैलकुलेशन बता रही होती हूँ तो सुन लिया करो.
वीक थोड़ा सा ये प्रॉब्लम करेगा। ओके, तो हम क्या कर रहे थे, हमने इसमें से क्या कॉमन लिया बेटा, 2 कॉमन लिया। व्हाट आर वी लेफ्ट विद, 66 राइट, प्लस 2f1 प्लस 4f2। ठीक है, नीचे क्या बचा हुआ है 7, ये इसको रिड्यूस करके क्या कर देगा 70, क्योंकि यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट में ले जाओगे तो डिवाइड होगा, तो ऐसे आप डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हो। ठीक है बच्चा, अब आपके पास क्या आ गया, 7 टाइम्स 17 विच इज 90, 49 and this will be 119, right, which is 66 plus 2f1 plus 4f2, right? 119 minus 66 will be 2f1 plus 4f2. Yes, 53. This will be 53 equals to 2f1 plus 4f2. एक इक्वेशन क्या थी हमारे पास, ऊपर ऊपर चली गई, वापस लाते हैं। क्या इक्वेशन थी बेटा हमारे पास, f1 प्लस, यहाँ लिख लेते हैं दोनों इक्वेशन। एक इक्वेशन है आपकी 2f1 प्लस 4f2 इक्वल्स टू 53, जो आपकी यहाँ से आई है, राइट। और एक इक्वेशन आपके पास क्या है, f1 प्लस f2 इक्वल्स टू 16। कौन सा मेथड लगाएंगे, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन के लिए क्या करना होता है, कोएफिशिएंट इक्वल करने होते हैं पहले, साइन चेंज सेकंड स्टेप होता है। इसका f1 देखो, कोई भी एक कर लो, या f1 का कर लो या f2 का कर लो। f1 का करते हैं, इन दोनों का इक्वल करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2f1 प्लस 2f2 इक्वल्स टू 32। ये किसके इक्वल आ जाएगी, 32। अब आपके पास क्या है, एक इक्वेशन ये बन गई और एक ऊपर वाली उतार लो, 2f1 प्लस 4f2 राइट इक्वल्स टू 53। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, कोफिशिएंट को इक्वल किया, और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो माइनस माइनस माइनस, तो ये 2f1 से 2f1 खत्म हो गया, एलिमिनेट कर दिया, इसलिए हम इसे एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। यस, माइनस 2f2 इक्वल्स टू, दैट विल बी, यस ना, 1 बेटा, 3 माइनस, yes 21, राइट, माइनस 21। सो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, f2 का वैल्यू विल बी 21/2। ठीक है, यस 10.5 भी लिख सकते हो, और आप वैल्यू वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। अब आपके पास f1 प्लस f2 एक इक्वेशन है, f1 प्लस f2 इक्वल्स टू 16। तो f2 की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, राइट, f1 प्लस 10.5 इक्वल्स टू 16। तो f1 क्या हो जाएगा बेटा, 16 माइनस 10.5 विच इज इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी 5.5। तो f1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 5.5। ऐड करके देख लो, क्या दोनों का सम 16 आ रहा है, यस, अंडरस्टूड। चलो करो फटाफट से।